Hello students, welcome back to my YouTube channel GA Academy, and this is your teacher Dheeraj Arora, and we are going to continue our numericals based on equations of motion. Equation of motion इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दिया है. जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ वो लिंक क्लिक करके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आज अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 7. A particle is starting with initial velocity 3 meter per second along the x-axis, and it accelerates uniformly at the rate of 0.5 meter per second square. Find part A is distance traveled by it in first 3 seconds. B part is how much time does it take to reach the velocity 8 meter per second. And then C part is how much time distance will it cover in reaching the velocity of 8 meter per second. Yes, इसमें क्या कहता है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी u, वो मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से. टाइम गिवन है विच इज 3 सेकेंड, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग विद 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड. तो मेरे को पता है इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. वी नो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. हाउ मच इज u? u इज 3, and how much is t? that is 3, and plus half. Acceleration is how much? that is 0.5 into how much is time? that is 3, its square. So it will become 9 plus 1 by 2 into 0.5 into 9, which comes out to be 11.25 meter. So this is my first part. Second part में B part में यो कहता है how much time does it take to reach the velocity 8 meter per second. गिवन है और क्या मेरे को फाइंड करना है. तो यहाँ पे मेरे पास v गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, u मेरे पास ऑलरेडी है विच इज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन is also given, that is 0.5 meter per second square, and t I have to find out. So we can use this formula. Again we know v equal to u plus at. So v is how much? 8. U is how much? that is 3 plus 0.5 at square into t square. So it will become 8 minus 3 is equal to 0.5 t square, or 5 equal to 5 by 10. Sorry, u plus at. Sorry, it is v equal to u plus at into, here it is t. So 5 will get cancelled and 10 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, which implies t equal to 10 second. Now we move on to our C part, which is C part में वो कहता है how much distance will it cover in reaching the velocity of 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन, अगर वेलोसिटी कितनी है मेरी. सी पार्ट वो कहता है
if velocity is 8 meter per second, then distance covered will be how much? So उस केस में मैं अपना थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ. We know v square minus u square equal to 2as. So v8 square, u is how much? That is 3 square equal to 2 into a is 0.5 and then s I have to find out. So this will become 64 minus 9 equal to 1 into s. So 64 minus 9 is 55. 55s. So implies s equal to 55 meter. Don't forget to mention the units. So this is the result and this is the final answer of the question as well. Question number 8 is, if the velocity of a particle is v equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance travelled by it between 1 second and 3 seconds is, its options are a by 2 plus b by 3, b 3 by 2a plus b, c 4a plus 26 by 3b, d 3 by 2a plus 11 by 3b. So मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कहता है उसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन है विच इज 80 प्लस बीटी स्क्वायर. इसमें मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट हियर, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में ये सब कुछ आ गया यहाँ से. सो वी नो v is equal to, velocity is equal to ds upon dt, implies ds is equal to v dt. Can we write it in this way? So integrating both sides, we are, so s will become integration of ds which will be equal to v dt इंटीग्रेशन. यहाँ पे dt की इंटीग्रेशन होनी है और टाइम कितना गिवन है यहाँ पे मेरे पास 1 से लेके 3 तक. सो इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं. नाउ इट विल बी, s विल बी इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है 80 प्लस बी टी स्क्वेयर, और ए और टी क्या, ए और बी क्या है मेरे, वो दोनों कांस्टेंट है. और इसकी लिमिट क्या रहेगी 1 to 3. सो इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज ए टी स्क्वेयर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 1 to 3 प्लस बी एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, लिमिट हो जाएगी 1 to 3, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो दिस इज द integration, how we are going to do the integration part. So this will be equal to 2, बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या रहेगा मेरे पास टी स्क्वेयर, लिमिट क्या रहेगी 1 to 3 प्लस, सिमिलरली वी कैन टेक आउट 3 आउट, टी क्यूब लिमिट रहेगी 1 to 3. So this will come out to be
a/2, जहाँ t है वहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। सो इट विल बी 3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर प्लस b/3, t क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब। So it becomes a/2, 3 is the 9, 9 minus 1 plus b/3, this comes out to be 27 minus 1. So this is equal to a/2 into 8 plus b/3 into 26. So it will come up, so ये आपका हो जाएगा 2 4 is the 8, 4a plus 26/3 b. So this will be the required option of the question. हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की हुई हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट इक्वेशन इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरी चलती हैं जब कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन में चल रहा है, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। व्हाट इफ अगर बॉडी ऊपर जाती है या बॉडी नीचे की ओर आती है, तब क्या होता है? तब ये इक्वेशन चेंज हो जाती हैं। इस केस में बॉडी अपवर्ड जा रही है, इट्स गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो देन इट विल बी g विल बी नेगेटिव एंड v विल बी 0। और जब बॉडी नीचे की ओर आती है तो u विल बी 0 एंड g विल बी पॉजिटिव। सो ये इक्वेशंस मेरी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली वर्टिकल पोजीशन के लिए। अभी मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड केस नहीं ले रहा, सिर्फ वो इक्वेशंस लिख रहा हूं। कौन सी एक्सेलरेशन विल चेंज इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, एंड s विल बी चेंज इनटू h, दैट इज हाइट। बिकॉज ये वाली यहां से लेके यहां तक सपोज इट इज हाइट, सो दिस इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, v equal to u plus gt. This equation will become h equal to ut plus half gt square. Next will become v square minus u square equal to 2gh. Right? अगर इक्वेशन बॉडी मेरी अपवर्ड जा रही है तो मैं g जो है नेगेटिव लूंगा और v 0 लूंगा इस वाले केस के लिए। अगर मेरी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है g विल बी पॉजिटिव एंड देन u विल बी 0। सिमिलरली वी कैन डील विद द अदर 3 इक्वेशंस आल्सो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड देन इक्वेशन 3। फॉर डिफरेंट इक्वेशंस this value of g and value of v will be different. Here also value of u and value of g will be different when the body is coming downwards. Now we move on to our question number 9, which says that two bodies A and B of mass 1 kg and 3 kg respectively are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively
calculate the ratio of the time taken by them to reach the ground. Yes dear, now my next question says कि मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी और दोनों को ऊपर से नीचे गिराया गया है. जब ऊपर से नीचे गिर रही है बॉडी तो u विल बी 0. उनका फर्स्ट बॉडी ए का मास है 1 kg और बी का मास है 3 kg. इसको 16 मीटर की ऊंचाई से गिराया है और इसको 25 मीटर की ऊंचाई से गिराया है. मेरे को फाइंड आउट करना है T1 अपॉन T2, इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है कि बॉडी कब ग्राउंड को आके टच करती है. दैट आई हैव टू फाइंड आउट. ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल गो अहेड. ऑलराइट, सो इसमें हम क्या करेंगे, H1 का फॉर्मूला वी नो. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, बिकॉज हाइट से गिर रही है. H विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. g क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव, बिकॉज बॉडी इज कमिंग डाउन. बॉडी इज कमिंग डाउन, देन u विल बी 0 एंड g विल बी पॉजिटिव, राइट. सो इसको H1 ले लेते हैं और इसको T1 ले लेते हैं, राइट. सो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड देन आई हैव 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू T1 स्क्वेयर. दिस इज 2 5s 10 and or if you wish you don't put the value of g here as well, keep it as it is. Cross H1 equal to 1 by 2 g T1 square, और यहाँ से T1 की वैल्यू निकालते हैं और 2H1 अपॉन G, एंड यहाँ से T1 विल बी इक्वल टू 2H1 अपॉन G अंडर द रूट. इज दैट क्लियर एवरीवन? सिमिलरली दिस इज फॉर बॉडी A. Here also write down, you can write down here case 1 for body A, right. Now similarly for body B, उसको हम T2 से डिनोट कर लेते हैं. So this will be equal to root 2H1 upon, so here it will be H2 upon G. Give it number 1, give it number 2, from 1 and 2. From 1 and 2 it will come out to T1 upon T2. T1 upon T2 will be equal to T1 upon T2 will be equal to H1 upon H2 under the root. So this is equal to, how much is H1? H1 is 16 and H2 is 25. So this is equal to 4 upon 5. So T1 upon T2 equal to 4 upon 5, which is the required result. This is my question number 10 now. Two balls are dropped from a height at 1 second interval of time. The separation between the two balls after 4 seconds of the drop of the first ball is
ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 45 मीटर, ऑप्शन सी 35 मीटर और ऑप्शन डी 50 मीटर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज कि दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स को मैंने नीचे गिराया है। एक बॉल पहले गिरी और दूसरी बॉल 1 सेकंड के बाद गिराई है। तो मेरे को फाइंड करना है सेपरेशन बिटवीन दी टू बॉल्स आफ्टर 4 सेकंड ऑफ द ड्रॉप ऑफ फर्स्ट बॉल, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे मेरे। केस 1, इसमें u दोनों केसेस में 0 रहेगा बिकॉज द बॉल इज कमिंग डाउन। सो हियर t1 ले लेते हैं हम। t1 विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सिमिलरली वी नो as we have discussed in our previous numerical that h equal to ut plus half gt square. So here h1 will be, this will be 0, half या शो कर देते हैं यहाँ पे, it is 0, 1/2 इंटू 10 इंटू t1 इज 4 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। सो दिस विल बी 2 इज द 4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 80 मीटर, राइट। सिमिलरली केस 2 विल बी h2 will be equal to half gt2 square. This will be 1/2, g is your 10। अब 1 सेकेंड के बाद बॉडी को दूसरी बॉडी को गिराया है मैंने, सो टाइम विल बी हेयर, t2 विल बी हेयर 5 सेकेंड, सो इट विल बिकम 5 स्क्वायर। So this is equal to 1/2 into 10 into 25, 2 5s, so which comes out to be 125 meter, right? So now we have to find out the separation between the two balls. Here h1 was your 80 meter, right? Give it number 1 and give it number 2. So separation will be now from 1 and 2, separation will be equal to 2 minus 1 or h2 minus h1, which is equal to 125 minus 80, which comes out to be 45 meter. Yes, my question number 11 now is a bullet moving with a speed of 100 meter per second can just penetrate 2 planks of equal thickness. Then the number of such kind of planks penetrated by same bullet when its speed is doubled will be option A 10, B 4, C 6 and option D is 8. So now my second question, next question will be क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वो कहता है कि एक बुलेट है जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। दैट मीन्स u कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, वो 2 प्लैंक्स को पेनिट्रेट करती है। मान लेते हैं प्लैंक की थिकनेस जो है वो क्या है x है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x, बिकॉज 2 प्लैंक्स को उसने क्या किया है पेनिट्रेट करा है। अब सेकंड केस में वो कहता है कि अगर मैं
इसकी बुलेट की स्पीड को डबल कर दूं तो वो कितने प्लैंक्स को पेनिट्रेट करेगी, राइट। सो n नंबर ऑफ प्लैंक्स को वो पेनिट्रेट करेगी, तो वो मेरे को n फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के बीच में। सो यहाँ पे केस 1 लेते हैं। x is the thickness of the plank, s is 2x, u is 100 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी बिकॉज प्लैंक के साथ जाके लग गई है, वहां पे जाके बुलेट रुक गई और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी 100 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। वी नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से a फाइंड करेंगे, v विल बी हाउ मच, दैट इज 0 माइनस u इज 100 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s इज हाउ मच, दैट इज 2x। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 zeros will be equal to 4ax, or which implies a, यहाँ से मेरे को a फाइंड आउट करना है, यहाँ से मेरे को a फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 2 3 4 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 4x विल बी इक्वल टू a। 4 से इसको कट कर देते हैं, this comes out to be 2500. So this is a will be equal to minus 2500 meter per second square. Give it number 1, right? So now case 2 हो जाएगा मेरे पास। केस 2 में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, सो वहां पे u मेरा क्या हो जाएगा, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 100। सो नाउ द इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम 200, बिकॉज वेलोसिटी मेरे को क्या कर दिया मैंने, वेलोसिटी मैंने डबल कर दी है, वेलोसिटी is doubled, right? And v will be how much, that will be 0, and rest of the things as let n is the number of planks, therefore s will be equal to nx. So s will be equal to nx. Similarly, again we are going to use this formula. So this comes out to be v is how much, that is 0, u is how much, that is 200 स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, दैट विल बी माइनस 2500 अपॉन, here it was x also, 2500 upon x, and here it is nx, x and x gets cancelled out, so you are left with minus 4, 1 2 3 4 is equal to सो यहाँ से हम वैल्यू n ले लें, 3 cancels out, so here it will be, here is minus sign also, minus minus will also get cancelled, implies n is equal to 40 upon 5, so this comes out to be 8. So that means 8 number of planks is the required result.
थैंक यू।